Hello everyone, this is Parithi Gaurav Nagda. In today's video, we are going to complete the story of the necklace which is of 9th standard SSC board. In last video, we have discussed about a lady named Matilde. She was very charming girl, and when she was girl that time she wanted to marry an aristocrat and she wanted to live a life of rich person. She wanted to have a rich family, but as she herself was not from a rich family, that's why she just let herself married to a clerk, and the life she was leading was of a normal middle class woman, but her dreams were quite high. She wanted a palatial mansion. She wanted to live life like a person who is having well furnished home, good furniture, everything she wanted. She wanted to have good dresses. She wanted to be famous, to be loved by people. So these all were her dreams and aspirations. Okay, now one day what happened? Her husband brought an invitation for a party, and after seeing that invitation, she was not happy. The reason was that she was not having any proper dress or any good dress to wear in that party. Then her husband had a talk with her and they decided that okay, she will purchase a new dress. After purchasing a new dress, still she was not happy, and the reason again was that she was not having a proper jewelry to wear on the dress. Now for that she went to her friend who was a rich lady, that is Madame Forestier, and from her she borrowed a necklace, a diamond necklace, and this necklace she wore along with her dress in that party, and she was looking very beautiful. She was looking different from others. Everyone was appreciating her, and she was extremely happy by seeing this all things. But this happiness was not for a long time. After reaching home, when she reached, that time she saw that the necklace was not there on her neck. She might have lost it somewhere. So the happiness comes to an end over here. Now after that what happens, we will see in this video. So let's begin part 2. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere. उन्होंने उस नेकलेस को सब जगह ढूंढने की कोशिश करी. उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उसकी ड्रेस में कहीं अटक गया हो, या किसी क्लोक में, क्लोक मीन्स लूज कोट जो होता है वो उसने वेयर कर रखा था, तो उनका ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोट में कहीं उलझ गया हो या पॉकेट्स में हो. तो हर जगह उन्होंने उसको ढूंढा, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड दैट नेकलेस. आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल? ही आस्क्ड. Yes, I touched it in the hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. Yes, that's probably it. So the husband asked that, are you sure that it was there with you when we were at hall? So she replied that yes, it was there. I had touched it. Then the husband again told that if it would have fallen on in the street, then we must have heard the voice, that noise. So they were not able to hear it. That means it was not in the street. So they thought that it can be in a cab through which they reached home. The wife also replied that probably, chances are there, it's possible. Then the wife asked, did you take his number? Husband replied, no. So they stared at each other, stunned. They were staring. Staring means घूरना, एक दूसरे को देख रहे थे वो, और एक दूसरे को देखकर वो शॉक हो रहे थे कि अब क्या करना है. उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था. At last, Loisel put his clothes on again. I'm going back, he said. Over the whole route we walked and see if I can find it. He left. उसने बोला कि मैं जाता हूँ एक बार, जहाँ से भी हम चले, जहाँ भी हमने वॉक किया, मैं एक बार देखता हूँ कहीं भी मिल जाए तो. और वो निकल गया. She remained in her ball dress all night, her mind blank. वो अपनी जो पार्टी ड्रेस थी, बॉल की जो ड्रेस उसने वेयर करी थी, वो उसने वेयर करके ही रखी, उसमें उसी में रही वो पूरे टाइम, और उसका जो माइंड था वो ब्लैंक था. शी वॉज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग. उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock. अराउंड 7 o'clock पे उसका हस्बैंड रिटर्न हुआ. ही हैड फाउंड नथिंग. उसको कुछ भी नहीं मिला.
He went to the police, to the newspapers to offer a reward, to the cab companies everywhere. The tiniest glimmer of hope led him. तो उसको लगा कि मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, न्यूज़पेपर में जाता हूँ ताकि कुछ नोट वहाँ दे सकूँ या फिर कुछ रिवॉर्ड ऑफ़र कर सकूँ, किसी को मिलता है तो वो मुझे रिटर्न करे, ऐसा कुछ रिवॉर्ड ऑफ़र कर सकूँ. कैब कंपनीज़ में भी गया वो, बट उसको कहीं भी कुछ नहीं मिला. वो यहाँ पर इसलिए गया था क्योंकि उसको एक थोड़ी सी होप थी. ग्लिमर ऑफ होप मीन्स एक थोड़ी सी एक रोशनी थी उसके मन में, एक थोड़ी सी छोटी सी उम्मीद थी कि कुछ पॉसिबल है. She waited all day in despair at this frightful disaster. और वो दुखी हो रही थी, completely depressed थी वो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और पूरा दिन उसका ऐसे ही चला गया. और इस डिज़ास्टर, इस भयानक चीज़ के बारे में वो सोच सोच के डर रही थी. Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. और वो फाइनली इवनिंग में रिटर्न हुआ, वो खाली था, वो एकदम ऐसा लग रहा था कि पेल फिगर इन द सेंस वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उसको. ही वॉज ऑल्सो ब्लैंक और उसको कुछ नहीं मिला अल्टीमेटली. यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड. टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ अ नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड. इट विल गिव अस सम टाइम टू लुक सम मोर. सो व्हाट डिड द हस्बैंड से? ही टोल्ड दैट डू वन थिंग, राइट टू योर फ्रेंड. उसको लिखो कि जो नेकलेस है उसका क्लैस्प. क्लैस्प मीन्स क्या होता है? सी, नेकलेस को हम टाई करते हैं, उसके लिए हमें 2 एंड्स होते हैं और उसको टाई करना होता है, तो वो दैट एंड्स इज कॉल्ड क्लैस्प. तो उसने कहा कि उसको बोलो तुम्हारी फ्रेंड को कि उसका जो क्लैस्प है उसके नेकलेस का वो टूट गया है और तुमने उसको मेंड करने के लिए दिया है, रिपेयर करने के लिए दिया है. इट विल गिव अस, उससे कुछ टाइम मिल जाएगा हमको. शी रॉट एज इट डिक्टेटेड. जैसा उसने कहा उसने लिखती गई वो. एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. एक वीक हो गया और उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई. एंड लॉयसल, हु सडनली लुक्ड एजेड, डिक्लेयर्ड, वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल. और जो लॉयसल था उसका हस्बैंड, वो अब थोड़ा सा एजेड लगने लगा था. एजेड क्यों लग रहा था? क्योंकि वो टेंशन में था, इसलिए वो थोड़ा सा एजेड लग रहा था. और उसने कहा कि अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो, वी हैव टू डू समथिंग टू रिप्लेस दैट नेकलेस, दैट ज्वेल. And so they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like other one. इसलिए वो एक jeweler से दूसरे jeweler के पास गए उस तरह का नेकलेस ढूंढने के लिए. consulting their memories, both sick with grief and anguish. Anguish means mental distress और grief means tension, दुख. So दोनों हर शॉप पे गए, हर जगह ढूंढने की कोशिश करी थी उन्होंने, कहीं कुछ तो मिल जाए उसके जैसा. In a shop at the Palatial Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. और फाइनली एक शॉप जो पैलेस रॉयल करके है, वहाँ पर उनको एक स्ट्रिंग ऑफ डायमंड, स्ट्रिंग मीन्स यू कैन से चेन, बेसिकली एक नेकलेस, ठीक है. तो उनको एक नेकलेस मिला जो एग्जैक्टली वैसा ही था जिसको वो ढूंढ रहे थे. इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स. और उसकी क्या प्राइस थी? 40,000 फ्रैंक्स उसकी प्राइस थी. देन दे कुड हैव इट फॉर 36,000. उन्होंने कहा कि हम बार्गेन किया और 36,000 में उनको फाइनल किया. सो दे बेग्ड द jeweler not to sell it for 3 days and they made an agreement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. उन्होंने कुछ 3 दिन मांगे उससे और उसने बोला है कि 3 दिन में आपको हम 3 days का टाइम दो हमें अमाउंट अरेंज करने के लिए. और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि अगर फरवरी के एंड तक हमें वो नेकलेस मिल जाता है तो हम आपको 34,000 में इसको वापस से दे देंगे. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? Loisel had 18,000 francs which his father had left him. Loisel के पास 18,000 francs थे जो उसके फादर ने उसके लिए बचा के रखे थे. He would borrow the rest. उसने सोचा कि मैं बाकी का उधार ले लूँगा, बोरो करूँगा. एंड ही डिड बोरो, उसने करा भी. ही गेव नोट्स, मेड रूनर्स एग्रीमेंट, डेल्ट विद एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर. उसने ही गेव नोट्स मीन्स उसने नोट्स लिखे, उसने नोट्स बनाए, उसने नोट्स दिए. उसने कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स भी किए जो डिस्ट्रक्टिव थे, मीन्स जो उसके लेवल के बाहर थे, फिर भी उसने कोशिश करी. उसने जैसे तैसे पैसे उधार लिए, सब तरह के मनी लेंडर से उसने डील किया. देन ही वेंट टू द न्यू नेकलेस टू गेट द न्यू नेकलेस. और फिर वो
न्यू नेकलेस परचेज करने के लिए गया एंड लेड डाउन ऑन द ज्वेलरीज काउंटर 36 फ्रैंक्स, और फाइनली उसने 36 फ्रैंक्स जो उसने कलेक्ट किए थे वो ज्वेलर के काउंटर पे दिए. व्हेन मैडम लॉयसेल टुक द नेकलेस बैक, मैडम फॉरेस्टर सेड कोल्डली, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट. तो जब मैडम लॉयसेल ने, दैट इज मटिल्डे ने, वो नेकलेस उसको वापस दिया तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि तुम इसको थोड़ा जल्दी दे सकती थी, मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी इस चीज़ की, इस नेकलेस की. फ्रॉम देन ऑन, और उस टाइम से मैडम लॉयसेल न्यू द टेरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, और उसकी जो लाइफ थी वो मिडिल क्लास से वेरी पुअर पर शिफ्ट हो गई थी. बट शी प्लेड हर पार्ट हेरोइकली, लेकिन उसने पूरी बहादुरी से एक हेरोइक मैनर में अपनी लाइफ को लीड किया. द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड, उसने सोचा कि ये जो भयानक सा डेट है, डेट मीन्स उधारी है, कर्जा है, इसको तो पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, इसको ख़त्म मीन्स वापस से इसको ख़त्म करना ही होगा, इस कर्जे से बाहर आना ही होगा. शी वुड पे इट, और उसने सोचा मैं इसको पे करूँगी. दे डिसमिस देयर मेड, उन्होंने अपनी जो मेड थी, जो सर्वेंट थी उसको डिसमिस कर दिया. दे चेंज देयर लॉजिंग्स, जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर लिया. दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ. गैरेट मीन्स क्या होता है, कई बार घर में रूफ अंदर छत के नीचे एक ऐसा रूम होता है जो स्टोर रूम होता है, तो वो उन लोगों ने उस स्टोर रूम में शिफ्ट किया क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मीन्स ज़्यादा महंगा उनको नहीं लेना था, इसलिए उन्होंने एक स्टोर रूम जैसी प्लेस पर अपना सामान और अपने आप को शिफ्ट किया. शी केम टू नो द ड्रजरी ऑफ हाउस वर्क. ड्रजरी मीन्स हार्ड लेबर, मीन्स उसको समझ में आया कि हाउस वर्क करना क्या होता है, उसकी जो भयानक चीज़ें हैं. मीन्स अभी तक फर्स्ट थिंग तो उसकी जो मैंटेलिटी थी वो थी कि मुझे रिच फैमिली चाहिए, उसके बाद उसकी मिडिल क्लास फैमिली में मैरिज हुई. ठीक है, देन ऑल्सो ओके, शी वॉज हैविंग मेड एंड एवरीथिंग वॉज ओके अप टू अ लेवल, बट नाउ द कंडीशन वॉज वर्स. तो उसको दिख रहा था कि कितना ज़्यादा हार्ड लेबर करना होता है. ओके, द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन, और ऐसा अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट लेबर जो उसको काम कभी पसंद नहीं था, वो सब काम उसे करना हुआ. शी वॉश द डिशेज, उसने प्लेट्स क्लीन की, प्लेट्स वॉश की, डिश वॉश की. द डर्टी लिनन, जो गंदे कपड़े होते थे वो उसने धुले. शी कैरीड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग शी हैड टू कैरी द गार्बेज, जो कचरा होता था वो नीचे लेके जाती थी वो स्ट्रीट में. कैरीड अप द वाटर, पानी ऊपर लेकर आना. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और यू नो जैसे कुछ हैवी वेसल अगर आप कैरी करते हैं पानी का या किसी भी चीज़ का हैवी वेसल, तो हम एकदम से ऊपर नहीं चढ़ सकते, हमें थोड़ी सी सांस लेने के लिए रुकना होता है. तो शी ऑल्सो यूज टू स्टे फॉर सम टाइम टू कैच हर ब्रेथ, सांस लेने के लिए रुकती थी फिर ऊपर चलती थी. शी ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर, और एक बिल्कुल कॉमन पर्सन की तरह, एक पुअर पर्सन की तरह शी यूज टू ड्रेस. She had to bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable sou. और उसको कई बार मार्केट्स में बार्गेन करना होता था, उसको लड़ना भी पड़ता था और इंसल्ट्स भी फेस करनी होती थी. सिर्फ एवरी मिसरेबल सो मीन्स यू कैन से फ्रेंच कॉइन, तो एक छोटे से छोटे अमाउंट के लिए भी उसको कई बार बार्गेन करना पड़ता था और इंसल्ट फेस करनी पड़ती थी. सो दिस वॉज द लाइफ ऑफ दैट लेडी. नाउ ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम, और हर महीने उनको कुछ ना कुछ लोन पे करना होता था, वो पे करते थे, फिर दूसरे लोन आ जाते थे सामने, फिर उसके लिए कुछ टाइम मिलता था उनको. हर हस्बैंड वर्कड एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट ही सेट कॉपिंग अ मैनस्क्रिप्ट एट 5 sous अ पेज. और उसके हस्बैंड ने काम ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, एक्स्ट्रा वर्क करना स्टार्ट किया, और हर इवनिंग वो कुछ ना कुछ ट्रेड्स पर्सन के लिए अकाउंट का वर्क करता था. वो क्लर्क था, सो वो कुछ ना कुछ अकाउंट्स का वर्क करता था, एक्स्ट्रा वर्क करता था, लेट नाइट वर्क करता था, कई बार मैनस्क्रिप्ट्स कॉपी करना फॉर अब एक पेज के लिए 5 sous. एज आई टोल्ड यू, सो जो होता है कॉइन होता है, तो 5 coins के लिए वो कई बार एक पेज को कॉपी करना वो काम करता था. एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years, और ये 10 साल तक उनकी लाइफ ऐसी ही रही. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग इवन द इंटरेस्ट. सो फाइनली 10 years के बाद, कंप्लीट होने के बाद उन्होंने सब चीज़ें पे कर दी, कोई भी चीज़ उनके पे उधार नहीं थी, कोई डेट नहीं था उनका, इवन इंटरेस्ट भी उन्होंने पे कर दिया था. मैडम लॉयसेल लुक्ड ओल्ड नाउ, और मैडम लॉयसेल अब बूढ़ी लगने लगी थी. ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो सोचती थी. शी यूज्ड टू थिंक डीपली ओवर द पास्ट.
What would have happened if she had not lost that necklace? How strange life is, how fickle, how little is needed for one to be ruined or saved. So she used to think like, कहाँ मैं थी और क्या लाइफ थी और अब क्या लाइफ हो गई है, क्या होता अगर मैं उस नेकलेस को नहीं खोती तो क्या होता. ठीक है, लाइफ कितनी अजीब हो गई है, एकदम चेंज हो गई है. फिकल मीन्स लाइकली टू चेंज, एकदम से चेंज हो गई है. और एक छोटी सी मिस्टेक से लाइफ कई बार रून मीन्स खराब भी हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और कई बार बच भी जाती है. वन संडे एज शी वॉज वॉकिंग इन द कैंप्स Elsie's, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. तो एक बार वो वॉक कर रही थी स्ट्रीट में, तब उसको एकदम मैडम फॉरेस्टियर दिखी. वो अभी भी यंग थी, ब्यूटीफुल थी और अभी भी वो बहुत चार्मिंग थी. मैडम लॉयसल फेल्ट इमोशनल. मैडम लॉयसल को एकदम इमोशनल फील हुआ, उसको एकदम दुख हुआ, एकदम उसको ऐसा लगा कि फ्रेंड दिखी है, खुशी भी हुई और दुख भी हुआ. शुड शी स्पीक टू हर? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो उसने सोचा कि क्या मैं अपनी फ्रेंड को सारी बात बताऊं. तो उसने बोला कि हाँ, मुझे बताना चाहिए, और क्योंकि उसने हर चीज़ पे कर दी है तो उसे क्यों नहीं बताए, वो हर चीज़ बतानी चाहिए. शी वेंट अप टू हर, और वो उसके पास गई. गुड मॉर्निंग जेनी. The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her. तो उसने अपनी फ्रेंड को उसके नेम से बोला, जेनी करके, और जो दूसरी लेडी थी दैट इज़ मैडम फॉरेस्टियर, उसको थोड़ा सा वो शॉक हुई इसको देखकर, क्योंकि वो इसको पहचान नहीं पाई. शी वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज हर. रिकग्नाइज मीन्स पहचानना. शी वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? She stammered, but madam, I don't know you. I don't know. You must have made a mistake. तो उसको थोड़ा सा शॉक हुई वो, और उसने स्टैमर किया. स्टैमर मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं हिचकिचाना या फिर हकलाना. हकलाते हुए उसने बोला कि आई डोंट नो यू. यू मस्ट हैव अ मिस्टेक. यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक. आपने कुछ गलती करी है. तो शी सेड दैट नो, आई एम मटिल्डे लॉयसल. उसने कहा कि नहीं, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है, मैं मटिल्डे लॉयसल. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई. ओह माई पुअर मटिल्डे, हाउ यू हैव चेंज्ड. तो उसको एकदम याद आया. उसने बोला, अरे ये क्या हो गया मटिल्डे, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई. येस, आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मैनी मिसरीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. उसने बोला कि हाँ, मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मुझे. और फिर उसने बोला कि जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा उसके बाद मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हुई, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ. मी, हाउ कैन दैट बी. उसने बोला कि मेरे कारण कैसे, मेरे कारण क्यों. यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वेयर टू द मेंस्ट्री पार्टी. सो शी आस्क्ड कि तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो मैंने तुमसे लिया था पार्टी में वियर करने के लिए. येस, वेल आई लॉस्ट इट. उसने बोला कि वो मुझसे गुम गया था. व्हाट डू यू मीन, यू ब्रॉट इट बैक. उसने बोला कि क्या कह रही हो, तुमने तो उसको वापस दिया था, मुझे रिटर्न कर दिया था. आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट. और उसने बोला कि मैंने तुमको उसका एग्जैक्ट कॉपी मीन्स वैसा ही सेम टू सेम मैंने तुम्हें दूसरा नेकलेस दिया था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. और उसको पे करने में हमको 10 साल लग गए. इट वॉजंट ईजी फॉर अस, वी हैड वेरी लिटिल. उसने बोला कि हमारे लिए इतना ईजी नहीं था, हमारे पास बहुत थोड़े से पैसे थे और उससे भी हमें बहुत कुछ, इतना 10 years तक हमको सफ़र करना पड़ा. बट एट लास्ट इट इज़ ओवर. लेकिन अब ख़त्म हो गया. एंड आई एम वेरी ग्लैड. और मैं बहुत खुश हूँ, सब ख़त्म हो चुका. मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टन्ड. वो शॉक थी. यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. तो उसने बोला, तुम्हारा मतलब है कि तुमने एक डायमंड नेकलेस जो मेरा था उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया डायमंड नेकलेस परचेज किया. येस, यू डिडंट नोटिस दैम. उसने बोला कि तुमने नोटिस नहीं किया. दे वर वेरी सिमिलर. वो बहुत एक जैसे थे. एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर. उसको एकदम प्राउड लगा अपनी फ्रेंड के लिए, और उसको इनोसेंट में उसको दुख भी हुआ, खुशी भी हुई देखकर कि अपनी फ्रेंड को देखकर कि वो कितनी लॉयल है एक तरीके से.
सो मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड टुक बोथ हर हैंड्स, उसने अपने हैंड्स उस पर रखे मटिल्डे पर. ओ माई पुअर मटिल्डे, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 francs एट मोस्ट. और उसने क्या बोला कि मेरी प्यारी मटिल्डे, वो सिर्फ एक इमिटेशन था. इमिटेशन मीन्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो रियल नहीं था, वो कॉपी थी. और वो सिर्फ 500 francs की थी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 francs की. और तुमने उसको रिप्लेस करने के लिए एक रियल डायमंड नेकलेस परचेज किया. हियर द स्टोरी एंड्स. सो वी कैन सी दैट हाउ समटाइम्स बिकॉज ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स, और यू कैन से लाइक बिकॉज ऑफ आर, हमें इतनी उम्मीद होती है, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है हमें लाइफ से, कि उसके कारण हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है. हम क्या करते हैं, हम अपने जितनी हमारी लिमिट है हम उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ वॉट मटिल्डे डिड इन द स्टोरी, एंड अल्टीमेटली शी हैज़ ओनली सफर्ड. आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू यू. दिस इज एन अडेप्टेड फ्रॉम द नेकलेस बाय Guy de Maupassant. Okay then, take care, stay safe.